بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ پھر جوان نے اگلی بات اور کہی، کہنے لگے، بس جس دن آپ نے اس جادوگر کو پکڑا اور اس جادوگر کو گرفت میں لیا، میں اس وقت سو رہا تھا اور اپنی نڈھالی میں مدہوش تھا۔ میں سوتے سوتے ایک پل میں اٹھ بیٹھا، میرا جسم چاندی کی طرح ہو گیا۔ میری ہڈیاں، میرا جسم، میرا گوشت، میرا خون، میری چربی، میری کمزوری، میری نکاہت اور میرے جسم کی پلاہٹ سب ایسے ختم ہوئی کہ میں پھر سے جوان ہو گیا۔ آج میں پھر وہی جوان ہوں، مگر ابھی تک میرے جسم پر بال نہیں آئے۔ یہ اس وقت آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے مطابق میں بہت صحت مند ہوں، میں تو پھر جوان ہو گیا ہوں۔ آپ نے میری پہلی حالت نہیں دیکھی۔ اگر آپ میری پہلی حالت دیکھتے یا تو مر جاتے یا بے ہوش ہو جاتے۔ اس جوان کا غم ایسا تھا، اس کے الفاظ ایسے تھے کہ حیرت انگیز جن کہنے لگا، میں کہاں بیان کر سکتا ہوں، میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی۔ ظالم جادوگر جن نے اس جننی کو بندریا بنایا، اس نوجوان کے تمام بال نوچے۔ اس سے بھی زیادہ گھٹیا درجے کے کام یہ جن کرتا تھا، اور ہر کام میں یہ جن نڈر اور بے باک اور مطمئن تھا۔ اور یہ جن ایسا تھا جس نے نامعلوم کتنے گھر اجاڑے، کتنے خاندان برباد کیے، کتنی شکلیں مسخ کیں، کتنے وجود ختم کیے، کتنے لوگوں کو زمین کے اوپر چلنے کے قابل نہ چھوڑا، موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ زمین کے نیچے قبر میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس جن نے مسلمان تو مسلمان، ہندوؤں، سکھوں کو معاف نہ کیا، عیسائیوں کو معاف نہ کیا۔ بس اس کے سامنے ایک لفظ تھا، انسان۔ پھر چلو انسان کا دشمن ہوتا، یہ تو جنات کا بھی دشمن تھا۔ وہ حیرت انگیز جن مزید کہنے لگا، اللہ کا نظام ایسے نہیں ہے۔ اللہ کسی بندے کو اختیار نہ دے کہ اس میں خیر ہوتی ہے اور اس میں عافیت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اختیار مل جانے سے وہ انسان فرعون اور خدا بن بیٹھتا ہے، اور وہ انسان ایسی زندگی کے دن رات سوچتا اور ڈھونڈتا ہے کہ خود تاریخ بھی اس کو فراموش نہیں کرتی اور معاف نہیں کرتی۔ اس جوان کے غم کی داستان کے بعد سردار ایک دم کھڑا ہو گیا اور تمام مجمع کے سامنے اپنا سر جھکا کر اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، لوگو، میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہارا سردار ہوں، تمہارا آقا اور شہنشاہ ہوں۔ میں نے ہمیشہ انصاف کیا اور انصاف چاہا۔ میری نگری میں ایسا ظالم پلتا رہا، بڑھتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا، اور مخلوق کو اذیتیں دے کر خوش ہوتا رہا، اور ان اذیتوں میں یہ مزید اپنا خون بڑھاتا رہا اور لوگوں کا خون چوستا رہا۔ مجھے احساس تو تھا، لیکن اتنا احساس نہیں تھا جتنا اب ہوا ہے۔ مجھے درد تو تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا اب محسوس ہوا۔ میرے اندر غم تو تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا اب میں نے اس کو بھانپ لیا۔ بآواز بلند لوگوں سے کہنے لگا، لوگو، یاد رکھنا، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے غم کو سمجھتا ہوں۔ اس جادوگر جن کو ایک ایک پل کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ پھر اس نے اپنے غلام کو، جو کہ جانوروں کا گوبر اٹھایا کرتا تھا، مجمع میں سے اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا، لوگو، اس شخص کا شکریہ ادا کرو۔ یہ شخص وہ ہے کہ جو تمہارے دکھوں اور دردوں میں میرا ساتھی بنا۔ اس کے پاس مکہ اور مدینہ کا ایک ایسا لفظ اور راز ہے، جس لفظ اور راز کو پڑھ کر اس نے اس جادوگر کے جادو کو سلب کر لیا، اس کی قوتوں کو توڑ دیا، اس کی زنجیروں کو مٹی بنا دیا، اس کے عزائم اور ارادے، اس کی خونخواری، اس کی خوفناکی، اس کی آگ اور انگاروں کو ان لفظوں نے پانی ڈال کر بجھا دیا۔ اب یہ بے حس و حرکت عام سا جن ہے جو کہ میرے تابع ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں اور غم سے اعتراف کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس کا تابع تھا،
मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं भरे मजमे में कहता हूँ, मैंने चंद बार इसको इन हरकत से बाज रखने की कोशिश की। इसने मेरा बच्चा मार दिया। ऐ लोगो, आपको याद तो होगा कि मेरा एक बेटा मरा था। लोगो, वो तभी मौत नहीं मरा था। इस जालिम ने मेरे बेटे को मार कर मुझे पैगाम भेजा था कि ख्याल रखना, आइंदा मेरे रास्ते में रुकावट न बनना, वरना दूसरा तोहफा भेजूंगा। मैं सबका दुख सुनूंगा। लोगों, मुझे मेरे बेटे का गम याद है। ये कहते हुए वो सरदार शहनशाह अपनी आंखों पर हाथ रख कर ज़ारो कतार रोया और फिर रोते रोते इसने पैगाम दिया, मैं सबका दुख सुनूंगा, सबका गम सुनूंगा। मुझे इल्म है इस जालिम ने बेशुमार लोगों को गम दिए। मुझे एहसास था जिस तरह इसने मुझे दुख दिए औरों को भी दिए होंगे, लेकिन इतना एहसास नहीं था। हैरत अंगेज जिन कहने लगा, मैंने इस जैसा बाइंसाफ, बाकिरदार, शफाफ मिजाज जिन्नात का आका और शहनशाह नहीं देखा। वो आज भी मौजूद है। इसकी नगरी में अदल है, इंसाफ है, बरकत है, राहत है, खुशियां हैं, कामयाबियां हैं। हर शख्स एक दूसरे को बर्दाश्त करता है और हर शख्स एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करता है। बादशाह ने ऐलान किया कि आज की महफिल हम यहीं कल के लिए ख़त्म करते हैं। कल दोबारा गम की महफिल सजेगी और जितने भी गमज़दा लोग हैं कल अपना गम बताएंगे और कल अपना दुख सुनाएंगे, कल अपनी दास्तान सुनाएंगे। और इसी तरह जिस अंदाज से आज सुनाया, मैं सबको सुनूंगा। शायद ये दास्तानें सुनकर मेरी नींदें उड़ जाएं। मुझे एहसास है मुझे कुछ खाना पीना अच्छा न लगे और मेरी भूख उड़ जाए, और जब इस तरह का गम ज्यादा होता है तो मैं बीमार हो जाता हूँ। ऐ काश मैं इससे पहले बीमार क्यों न हुआ। ऐ काश इससे पहले मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी चाहतें, मेरी मोहब्बतें, मेरी तन्हाइयाँ ख़त्म क्यों न हुई। मेरा ताज मुझसे क्यों न छीना गया, मेरी राहत मुझसे क्यों न छीनी गई, मेरी नगरी बाकी क्यों रही। मैं इंसानियत के लिए दाग बन गया, इंसानियत के लिए दुख बन गया। मैं गमों की दास्तान और कहानी बन गया। बादशाह रो रहा था, एतराफ़ जुर्म कर रहा था और अपनी रियाया से बार बार माफ़ी मांग रहा था। इसका रोना, एतराफ़ और गम रियाया के सामने ऐसा बना कि रियाया के दिल में इसकी इज्जत और वक़ार और बढ़ गया, इसका एहतराम और ज़्यादा हो गया। वहाँ फिर वही रोना, चीखो पुकार, आहो बका थी और सारी रियाया कह रही थी, आका मुजरिम नहीं, आप तो हमारे मोहसिन हैं। नहीं, आप जालिम नहीं, आप तो हमदर्द और रहम दिल हैं। आप जिन नहीं, आप जिन के रूप में एक फरिश्ते हैं। हमें तो आज मालूम हुआ कि इस जालिम ने आपके बेटे को कत्ल कर दिया और आपके लख्ते जिगर को आपसे हमेशा के लिए छीन लिया। हम आपके सब्र को, आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं, आपके ताज को सलाम पेश करते हैं, आपके तख्त की अजमत को सलाम करते हैं। बस जिन्नात की जज्बाती कैफियत थी और जज्बाती बातें थीं, और इंसानों का जज्बाती शोर, एक वलवला, एक हंगामा और एक कैफियत जिसको हर शख्स सुन रहा था। इस दिन की मजलिस बर्खास्त हुई। इस जालिम जादूगर को घसीट कर जिन्नात की खास जेल में डाल दिया गया और अजियतों के पहाड़ इस पर ढाए गए। इसकी चीखें इतनी ऊंची थीं कि लोगों ने इस जालिम जिन की चीखों को सुना। इंसान और जिन्नात को खसूसी तौर पर बादशाह ने दावत दी कि जेल के इर्द गिर्द आओ, इसको देखो। बादशाह के खास ताकतवर फौजी इसको तरह तरह के अजियतें दे रहे थे और अजियतों के पहाड़ ढा रहे थे, और वो जालिम सिसक रहा था और रहम की अपील कर रहा था, और किसी को इस पर इसलिए रहम नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद रहम दिल नहीं था। कोई इस पर हमदर्दी नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद हमदर्द नहीं था। किसी को इस पर तरस नहीं आ रहा था क्योंकि इसने आज तक किसी पर तरस खाना सीखा ही नहीं था। कोई इस पर लिहाज नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद ऐसा बदलिहाज था कि लिहाज नाम की चीज इसके करीब से भी नहीं गुजरी थी। बादशाह के फौजी रात दिन इस पर मुसल्लत थे। लोग खुश हो रहे थे और जोक दर जोक आ रहे थे
और इस मंजर को देख रहे थे। इनमें वो बूढ़ी औरत भी थी और जवान भी था, और इन्हीं की तरह बेशुमार डसे हुए भी थे जो इसके जहर से तड़पते रहे, सिसकते रहे, उलझते रहे, जिनकी तलाकें हुई, जिनकी बीमारियां बढ़ी, जिनके गम फैले, जिनके दुख और दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया। वो दुख दर्द इतने बढ़े कि इनके दर्द की इंतहा न रही। वो गम इतना बढ़ा, इनके गम का कोई वजूद नहीं था। आज इनके दिलों में तस्कीन थी, आज इनकी रूहें ठंडी थीं, आज इनकी आंखों में नमी थी और आंसू भी थे। पहले दर्द के आंसू थे, अब खुशी के आंसू हैं। इस जालिम के अंजाम को देखकर, इस जालिम को तड़पता देखकर हैरत अंगेज जिन ये बातें बता रहा था। इसकी सांस फूल गई थी। एहसास कर रहा था कि इस जालिम की बातें बताते हुए खुद वो भी मसरूर और खुश नजर आ रहा था। अब अगले दिन की बादशाह की कचहरी का लोग इंतजार कर रहे थे। मैं हैरत अंगेज जिन के इन वाकयात को सुनकर खुद हैरान हो रहा था कि या खुदाया, दुनिया में ऐसे जालिम लोग भी होते हैं। जुल्म के बड़े बड़े किस्से पढ़े भी, सुने भी और कुछ देखे भी, लेकिन इतने बड़े जालिम को शायद मैंने कभी न देखा हो। हर घर में इस जालिम का चर्चा था। वो जालिम था, वो खबीस था, वो दरिंदा था जो लोगों की अजमतों को तार तार कर चुका था, जो लोगों की जवानियों को बर्बाद कर चुका था, जिसने लोगों के घरों से इनके अजीजों को चुन चुन कर मारा था, जिसने लोगों को अपाहज, लूला, लंगड़ा और मजूर कर दिया था, जिसने सिर्फ जुल्म नहीं ढाया था बल्कि जुल्म की काली रात को और स्याह कर दिया था, जिसने जुल्म की दास्तानों को और आगे बढ़ा दिया था। मैंने हैरत अंगेज जिन से इस बाबे के जुल्म की बातें भी सुनी, जिसने खजाने की तलाश में हैरत अंगेज जिन पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए और मकारी अयारी की इंतहा की थी। लेकिन ये जालिम कुछ और जालिम था, ये दुश्मन कोई और दुश्मन था। लोग जगह जगह बैठकर इसके जुल्म के चर्चे कर रहे थे। जब बात खुली तो एहसास हुआ कि ये तो एक शख्स नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों इंसान और जिन्नात को तड़पा चुका है, सिसका चुका है। इसके काले जादू ने, इसकी काली दुनिया ने, इसके काले अल्फाज ने, इसके काले मंत्रों ने इसको इतना ज्यादा जालिम बना दिया, जाबिर बना दिया और बेदर्द बना दिया कि इसकी आंखों पर स्याह पट्टी बंधी जा चुकी थी। अब लोगों में एक और चर्चा भी हुआ कि वो जिन कौन था जो बादशाह का गुलाम था और आज बादशाह का आला दर्जे का मनसबदार है और इसे बादशाह के दरबार में बेहतरीन ओहदा मिल चुका है। सब कहते थे जाकर इससे मिलें, इसका शुक्रिया अदा करें और इसको चूमें, और गैर मुस्लिम यहाँ तक कहते कि इसको सजदा करें, इसका इकराम करें, इसकी पूजा करें, इसको अपना देवता बना लें। कोई कहता अगर वो जिन एक मर्तबा मिल जाए तो मैं इसके पांव धोकर पी लूं। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चे और बातों में आई वो ये थी कि आखिर इसके पास ऐसा कौन सा लफ्ज था, वो कौन सा हर्फ था। कोई कहता कोई मंत्र होगा, सब इसको झुटलाते, मंत्र नहीं, कोई पाकीज़ा बोल था। काली दुनिया तो इस काले जादूगर के पास भी थी। वो पाकीज़ा बोल था जिसने इसकी काली दुनिया और काले जादूगर को एक पल में खाली कर दिया और निहत्ता कर दिया और इसकी दुनिया को वीरान कर दिया। नहीं नहीं, सब कहते थे इसके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी खबर नहीं, इसके पास कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते, इसके पास कोई ऐसी चीज है जो हमारे इल्म में नहीं। अब सब इसकी टो में थे, किस तरह इस शख्स से मिलें और वो इल्म हासिल करें या वो लफ्ज़ हासिल करें जिस लफ्ज़ की वजह से बादशाह के दरबार में इसको इज्जत मिली, शान व शौकत मिली और सरवरी मिली। लेकिन वो शख्स अब जानवरों के गोबर उठाने वाला, आम मिलने वाला नहीं रहा था। अब इसे बादशाह का खास कुर्ब मिल गया है। अब वो खुद एक बादशाह है और बादशाह की नज़रों का तारा है। बादशाह ने इससे अपने साथ इसलिए भी रखा हुआ था कहीं जादूगर का जादू फिर न जिंदा हो जाए। जिस तरह जादूगर पहले बादशाह को जानी नुकसान पहुंचा चुका था, इसका बेटा मार दिया, बेशुमार लोगों को जानो माल
और इज्जतों के नुकसान पहुंचा चुका था। वो कौन था? इसका नाम क्या था? इसके पास क्या बोल था? इसके पास क्या हर्फ थे? इसका चर्चा आम होने लगा। लोग दूसरे दिन का इंतजार करने लगे कि शायद इस तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। बड़े बड़े दाना समझदार इस तक पहुंचने की राहें तदबीरें लड़ाने लगे। अब दूसरे दिन का इंतजार होने लगा। पहले दिन कुछ लोग थे, लेकिन दूसरे दिन तो लोग इतने ज्यादा कि इतला दूर दूर तक पहुंच चुकी थी और हर शख्स अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था। और बादशाह की कचहरी के लिए मजीद जगह का इंतजाम किया गया और बादशाह और सरदार को भी एहसास हो गया कि आज लोग मजीद आएंगे और आज मखलूक खुदा बहुत ज्यादा, वो लोग भी जो बहुत ज्यादा दुखी और दुखियारे थे, इनके साथ इनके खानदान वाले भी, और मजीद वो लोग भी जिनको इस जालिम जिन ने सताया नहीं, लेकिन वो दूसरे लोगों की जुल्म की कहानियां सुनने और इसके इबरत का अंजाम देखने के लिए जरूर आएंगे। एक एक लम्हा, एक एक घड़ी दिनों और मीलों के बराबर बढ़ रहा था। हर शख्स शाम के आने का इंतजार कर रहा था और शाम के बाद फिर रात। ए काश इतनी लंबी रात की न जाने कब सुबह होगी, किस वक्त हम बादशाह की कचहरी में पहुंचेंगे। कुछ ने तो इरादा किया हम रात को ही चल पड़ेंगे ताकि आगे से आगे बैठें, और कुछ ने इरादा किया रात के ढलते ही चल पड़ेंगे, बेहतर से बेहतर जगह पर बैठें। हर शख्स अपना इरादा कर रहा था। दिन था कि गुजर नहीं रहा था और रात थी कि ढल नहीं रही थी, और दिन तो पहाड़ से ज्यादा हो गया और रात का तो फिर पूछे ही ना, क्योंकि इंतजार की घड़ियां और सख्त होती हैं और इंतजार के लम्हे तो और कड़े होते हैं। आखिर खुदा खुदा करके अगला दिन आन पहुंचा।